केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना राज्य के सुखिया विदात एवं सर्वप्रथम खादी भंडार फवीलाला खादी ग्राम गो प्रतिष्ठित द्वारा किया है। इस अवसर पर उन्होंने भंडार के स्थापनिक वरिष्ठ नेता जंगा रेड्डी से मिले। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहां मग्गम पर तैयार किया गया तिरंगा लाल किले पर फहराया गया था। इसी संदर्भ में उन्होंने वरिष्ठ नेता जंगा रेड्डी से भी मिले। उन्होंने जंगा रेड्डी के परिजनों से भी इसी संदर्भ में बातचीत की। उन्होंने जंगा रेड्डी के संबंध में भी जानकारियां ली। 1984 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुने गए 2 सांसदों में जंगा रेड्डी भी एक थे। किशन रेड्डी ने बताया कि वावीलाला खादी ग्रामोद्योग भंडार काफ़ी पुराना और राज्य का प्रतिष्ठित खादी भंडार रहा है। इस खादी भंडार ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। कुकटपल्ली नैना गार्डन में टीआरएस पार्टी के कर्तव्यों की विस्तृत स्थित बैठक संपन्न। विधायक माधवरम कृष्णा राव ने बैठक की अध्यक्षता कर पार्टी के विजय गर्जना सभा की चर्चा की। इस संदर्भ में विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की मुख्य शाखाएं होते हैं। आगामी 15 नवंबर को वरंगल में आयोजित होने वाली तेलंगाना विजय गर्जना आम सभा को सफल करने की जिम्मेदारी हम सभी कार्यकर्ताओं की है। विधायक ने बताया कि विजय गर्जना सभा के लिए प्रत्येक डिवीजन से एक बस का व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि कहीं पर भी कोई छोटी समस्या न आए और किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसे इंतजाम किए गए हैं। इसी बैठक में नई कमेटियों के गठन के साथ साथ पार्टी को मजबूत करने के विषय में भी चर्चा की गई। विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कार्यकर्ताओं को आदेश देते हुए कहा कि वे पार्टी द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक ले जाएं। इस बैठक में विधायक सहित कई कार्यकर्ता, अधिकारी आदि उपस्थित थे। అదే విధంగా ఇప్పుడు అయ్యే బస్సు కైకాపా నుంచి 160 కోట్లతో జనవరి లోపల జరిగిన బ్రిడ్జ్ ఇవే 1000 కోట్లు అయినా లేవా? 400 కోట్ల రూపాయలు పెట్టేసి ఉన్నటువంటి మంచినీళ్ళు ఎప్పుడో రామారావు నాన్న ఎంతో మంది ఇబ్బంది మా సత్యం అక్కడ ఎన్నోసార్లు అన్న సత్యం వచ్చి ఇక్కడ చనిపోతున్నా పిల్లలు కొట్టుకోబోతున్నా ఎవరు పట్టించుకోలేరంటే దానికి 6-800 కోట్లు పెట్టి మొన్న స్టార్ట్ చేసి అది వరకు కంప్లీట్ అయిపోతాం। మా రవీంద్ర రెడ్డి చెప్పాడు ఇప్పుడు దిల్కుసాగర్ రోడ్డు కూడా పట్టించుకున్నాడా? వాళ్ళు రాత్రి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి మీద డెలివరీ అయ్యే సమయం వస్తే మా మధ్యలో బుద్ధలనే డెలివరీ అయ్యే ప్రమాదం ఉండే। ఎన్ని బాధలు పడ్డారో, ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో 40 నుంచి దిక్కుస్తారు ప్రజలు। మరి ఏ ఒక్కడు మంత్రిగా పనిచేశారు, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు, రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేశారు, మా దిల్కుసాగర్ రోడ్ ఎందుకు కాలేదు? నేను ఆ రోజు రవీందర్ రెడ్డి గారి ఎలక్షన్లు వెళ్ళాను, ఒకటే చెప్పాను, నాకు కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను, కానీ నాకు కూడా బాధ అనిపిస్తుంది। నీవు గిట్ట రవీంద్ర రెడ్డి గెలిపేయండి, నేను ఒట్టి పరిస్థితిలో ఏపించే బాధ నాది అని చెప్పాను। अंबरपेट डिवीजन के शासक ने बताया कि अंबरपेट निवर्सन क्षेत्र के टीआरएस कर्तव्यों का विस्तार सत्याग्रह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अगले माह वरंगल में होने वाली ये सभा की कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आग्रह किया है। अंबरपेट నియోజకవర్గంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు। ఈ కార్యక్రమానికి అంబర్పేట్ నియోజకవర్గ सभा से संबंधित ఎమ్మెల్యే కాళేరు వెంకటేష్ మరియు अंबरपेट डिवीजन कॉर्पोरेटर विजय कुमार गौड़ हाजरయ్యారు। కానీ ఈ గోల్నాక డివిజన్ కి సంబంధించిన కార్పొరేటర్ దూసరి లావణ్య శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాత్రం అంబర్పేట్ నియోజకవర్గంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు। ఈ కార్యక్రమానికి అంబర్పేట్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే కాళేరు వెంకటేష్ మరియు అంబర్పేట్ డివిజన్ కార్పొరేటర్ విజయ్ కుమార్ గౌడ్ హాజరయ్యారు। కానీ ఈ గోల్నాక డివిజన్ కి సంబంధించిన కార్పొరేటర్ దూసరి లావణ్య శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాత్రం ఇక్కడికి హాజరు కాలేదు। మనము గతంలో చూసుకున్నట్టయితే డివిజన్ అధ్యక్ష పదవి తమకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా డివిజన్ అధ్యక్ష పదవి అప్పజెప్పినందుకు ఆయన ఖండించి ఆ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు। ఈ రోజు కూడా ఆ రోజు గుర్తుకు రాని కార్పొరేటర్ ఈ రోజు ఎందుకు అనేసి ఆయన అడిగారు। మరియు ఏదైతే ఈ అంబర్పేట్ నియోజకవర్గంలో గతంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే 5 డివిజన్లలో కార్పొరేటర్లు ఉండేది। కానీ
గతం ఈ ఎన్నికల తర్వాత ఇద్దరు కార్పొరేటర్లు మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేటర్ కూడా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం చాలా శోచనీయం. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाई शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा का 8वें दिन से प्रवेश महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के तिम्मपुर से पद यात्रा जारी। भारी संख्या में कर्तव्य समर्थक आम जनता पद यात्रा में शामिल हुए। पूरे आनंद एवं उत्साह एवं जोश भरे माहौल में पार्टी के कार्यकर्ता, नेता एवं समर्थकों सहित आम जनता वाईएसआर जिंदाबाद, वाईएसआर अमर रहे के नारे लगाते हुए प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा आगे बढ़ रही थी। ग्रामीण लोग जय शर्मिला के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शर्मिला ने पद यात्रा के दौरान रास्ते में उनसे मिले ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी तकलीफें भी सुनी। इस संदर्भ में उन्होंने लोगों से कहा कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सत्ता में आई तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तेलंगाना में राजन्ना राज्य आ जाएगा। इसके लिए आप सभी को संगठित रूप से वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को अपना पूरा समर्थन देना होगा। आज आपकी इस प्रेरणा से मैं काफ़ी प्रसन्न और आश्वस्त हो गई हूँ। राजकुंडा यातायात पुलिस के तत्वाधान में एलबी नगर यातायात पुलिस थाने में परिधि के विरोध अभियान। इस पर राजकुंडा पुलिस ने ट्विटर मंच से अभियान जानकारी दी है। यातायात पुलिस के इस विशेष जांच अभियान के अंतर्गत जिन वाहनों के नंबर प्लेट सही नहीं थे एवं व्यवस्थित नहीं है तथा फैंसी नंबर प्लेटों, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को सहयोग देने के साथ साथ उसे बेहतर बनाने में राचकोंडा पुलिस के साथ सहयोग किए सभी लोगों के प्रति राचकोंडा पुलिस ने आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमति नहीं मिली है। कोवैक्सीन के संबंध अतिरिक्त जानकारियों देने का WHO के टॉनिक सलाहकार ने भारत बायोटेक के आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कोवैक्सीन की अनुमति देने का प्रक्रिया अंतिम दौर में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक आगामी 3 नवंबर को आयोजित की गई है। इसी बैठक में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भारत बायोटेक ने इसी वर्ष के 19 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए सूची में जोड़ने का आग्रह किया था। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोवैक्सीन को अनुमति मिलती है तो कोवैक्सीन को विश्व के विविध देशों में इस्तेमाल की सुविधा होगी। साथ ही वैक्सीन की दोनों खुराक लिए भारतीय लोगों को विदेशों में बेरोक टोक जाने की भी सुविधा हो जाएगी। भारत बायोटेक अपने वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। दिशा मामले के न्यायिक आयुक्त अपनी जांच कार्यवाही को तेज कर दिया है। दिशा दुर्घटना तथा हत्या के मामले में जानकारी अधिकारी नसीर रेड्डी आज दिशा आयोग को समक्ष उपस्थित हुए। दिशा मामले की जांच किए अधिकारी नरसिम्हा रेड्डी का बयान आयोग ने रिकॉर्ड किया। पहले ही आयोग ने कुछ गवाहों, मुठभेड़ पीड़ित परिवारों, पुलिस के उच्च अधिकारियों तथा तत्कालीन पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार से पूछताछ की गई है। इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि अब दिशा मामला अंतिम चरण में है। अब तक जो जांच एवं पूछताछ की गई है, आयोग को इससे संबंधी फैसला सुनाना बाकी है। देश में पेगासस नागरानी मामले में स्वतंत्र पूछताछ एवं जांच से आदेश देने वाली मांग लेकर द्वार हो गए हैं। याचिकाओं पर आज उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि पेगासस मामले में एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया गया है। न्यायालय ने यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्रन के नेतृत्व में एक विशेष समिति गठित की गई है। न्यायालय ने कहा कि कानूनी ढंग से शासन चलाना चाहिए, यही न्यायालय का अभिमत है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि प्राथमिक अधिकारों का उल्लंघन होना यह सही नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा
कि व्यक्ति की अपनी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए और इसे न्यायालय सहन नहीं करता। न्यायालय ने बताया कि इस मामले में कुछ याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष पीड़ित भी हैं। न्यायालय ने बताया कि तकनीकी का दुरुपयोग होने के संबंध में पूरी जांच की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमणा के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए मामले को 13 नवंबर तक के लिए विचाराधीन रख दिया। इसके आगे की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किए जाने की पुनः जानकारी दी। वर्तमान त्योहारों के मौसम की यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लगभग 668 त्योहार विशेष रेल सेवाओं की संचालित कर रहा है। देश भर में विविध सेक्टरों का जुड़ते हुए विशेष रेल सेवाएं चल रहा है। भारतीय रेलवे के अनुसार इन 668 विशेष रेलों के साथ साथ नियमित रेलों में भी अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखकर देख रेख एवं रखरखाव कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। भारतीय रेलवे ने देश भर के यात्रियों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने और रेलवे के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। त्योहारों के मौसम यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के साथ साथ स्वराज जाने वाले के लिए दक्षिण मध्यम रेलवे ने हैदराबाद गोरखपुर के बीच सुपर फास्ट छठ एक्सप्रेस रेल चलाने का घोषणा की है। इन विशेष रेलों के अंतर्गत चलाए जाने वाले रेलों में 02575 नंबर की रेल 11 नवंबर की रात 9:05 पर हैदराबाद से रवाना होकर 14 नवंबर रविवार के प्रातः 6:30 पर गोरखपुर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार 7 नवंबर को 02576 नंबर की रेल गोरखपुर से प्रातः 8:30 पर रवाना होगी और सोमवार को मध्याह्न 3 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। माधोपुर खानेमेट की अभिकारी पुलिस ने आयुमुक्त जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अभिकारी पुलिस ने गोपनीय ढंग से गांजे के साथ बनाए हुए चॉकलेटों की सप्लाई कर रहे एक व्यक्ति को घर दबोच दिया है। इस व्यक्ति चोरी छिपे गांजे तैयार कर रहे चॉकलेट कार में रखकर सप्लाई कर रहा था। आबकारी पुलिस ने बताया कि गांजे से निर्मित चॉकलेटों का दुर्गा प्रसाद निर्यात कर रहा था, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। दुर्गा प्रसाद के पास से पुलिस ने 3.6 किलो गांजे से निर्मित चॉकलेटों के पैकेट जब्त किए। पुलिस दुर्गा प्रसाद को रिमांड पर भेजकर आगे की जांच कर रही है।